Jai Radha Madhava Bihari Jai Radha Madhava Bihari Gopi Jana Vala Varadhari Gopi Jana Vala Varadhari Jai Radha Madhava Bihari Jai Radha Madhava Bihari Sodanandana Bhajaya Anjana Sodanandana Bhajaya Anjana Jannakiya Bhanachari Jannakiya Bhanachari Jai Radha Madhava Bihari Jai Radha Madhava Bihari Gopi Jana Vala Varadhari Gopi Jana Vala Varadhari Sodanandana Bhajaya Anjana Sodanandana Bhajaya Anjana Jannakiya Bhanachari Gopi Jana Vala Varadhari
Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhakta-vrinda. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhakta-vrinda. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhakta-vrinda. Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Prabhupada, 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 Prabhupada. Jai Radha Parshadi, Radha Parshadi Radhe. Haribo, 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 Haribo. Haribo, 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 Haribo. Haribo, Haribo. Haribo, Haribo.
जय ओम विष्णुपाद ब्रह्मांड से प्रविचार्य जवाएंगे शिला बेचन नर्मद स्वामी शिला प्रभुपाद महाराज की, शिला प्रभुपाद की, श्री श्री गौरताय की, श्री श्री राधा पार्थसारथी ललिता विशाखा की, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, समगुतनी आज्ञा की. All glory to the assembled devotee. All glory to the assembled devotee. All glory to the assembled devotee. All glory to Sri Guru and Sri Gauranga. Hare Krishna. Welcome to the Śrīmad-Bhāgavatam class. हरे कृष्णा, आप सबका स्वागत है. लेकिन एक बात का ध्यान रखना होगा आपको. एक तो आप थोड़ा सा दूरी बना के रखिए, बहुत पास में बैठे हैं. और दूसरा, प्रवचन के बाद, जैसे हमने पहले सुबह भी बताया था कि प्रवचन के बाद महाराज के बिल्कुल करीब ना जाए, नज़दीक ना जाए. आप प्रवचन सुने बड़े ध्यान से, उसके बाद फिर अपने निवास स्थान के लिए आप सब प्रस्थान करें. हरे कृष्ण. Do I have to wear the mask or I can speak without mask? Yes, sanitize the mic. All of you are sanitized now. All of you have new bodies. Your old body is gone. The sanitized people will be doing good business. Okay. As I said, this class is being heard internationally, so we can speak a few words in English in the middle. Is that okay? Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. आज का श्लोक था टेक्स्ट 13, तो वो मैं पहले कर चुका था. So we'll do text 14. The text 13 has been done. Śrīmad-Bhāgavatam, Canto 5, Chapter 12, Text 14. बोर्ड में है. ahaṁ purā bharato nāma rājā vimukta-dṛṣṭa-śruta-saṅga-bandhaḥ ārādhanaṁ bhagavata īhamāno mṛgo bhavaṁ mṛga-saṅgād dhatārthaḥ ahaṁ purā bharato nāma rājā vimukta-dṛṣṭa-śruta-saṅga-bandhaḥ ārādhanaṁ bhagavata īhamāno mṛgo bhavaṁ mṛga-saṅgād dhatārthaḥ ahaṁ purā bharato nāma rājā vimukta-dṛṣṭa-śruta-saṅga-bandhaḥ ārādhanaṁ bhagavata īhamāno mṛgo bhavaṁ mṛga-saṅgād dhatārthaḥ. aham purā bharato nāma rājā vimukta-dṛṣṭa-śruta-saṅga-bandhaḥ ārādhanaṁ
ārādhanam bhagavata īhamāno mṛgo bhavaṁ mṛga-saṅgād hata-arthaḥ माता जी आपको लगता है आपका मंदिर 3-5 महीने बंद था? मुझे लगता है तो वो लगता है कि हमेशा खुला शब्द अहम मैं पुरा पहले पूर्व जन्म में भरतः नाम राजा भरत नाम का राजा विमुक्त मुक्त दृष्ट श्रुत प्रत्यक्ष अनुभव से अथवा वेदों से ज्ञान प्राप्त करके संग-बंधः संगति का बंधन ārādhanam पूजा भगवतः भगवान की īhamāno सदैव करते हुए मृगः अभवम मैं मृग बन गया मृग-saṅgāt मृग के साथ घनिष्ठ मैत्री से hata-arthaḥ भक्ति के विधि विधानों की उपेक्षा करके। अनुवाद मेरे पीछे बोलें। मैं पूर्व जन्म में महाराज भरत के नाम से विख्यात था। मैंने प्रत्यक्ष अनुभव तथा वेद ज्ञान से प्राप्त अप्रत्यक्ष अनुभव द्वारा सांसारिक कार्यों से पूर्णतया विरक्त होकर सिद्धि प्राप्त की। मैं पूर्णतया भगवान की सेवा में तत्पर रहता था, किंतु दुर्भाग्यवश मैं एक छोटे से मृग के प्रति इतना आसक्त हो उठा कि मैंने सारे आध्यात्मिक कर्तव्यों की उपेक्षा कर दी। मृग के प्रति प्रगाढ़ स्नेह के कारण अगले जन्म में मुझे मृग का शरीर अंगीकार करना पड़ा।
तात्पर्य प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। यहाँ पर वर्णित घटना अत्यंत महत्वपूर्ण है। पूर्ववर्ती श्लोक में कहा गया है, विना महत्पाद रजोभिषेकम, महापुरुष के चरण कमल की धूलि को सिर पर धारण किए बिना सिद्धि प्राप्त नहीं की जा सकती। यदि सद्गुरु के आदेशों का निरंतर पालन किया जाए तो गिरने का प्रश्न ही नहीं उठता, किंतु ज्यों ही अज्ञानी शिष्य महत्वाकांक्षा के कारण अपने गुरु का स्थान बलात् लेने का प्रयास करता है, त्यों ही उसका पतन हो जाता है। यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो यस्या प्रसादान न गतिः कुतोपि। यदि शिष्य गुरु को सामान्य व्यक्ति मानता है तो उसकी प्रगति रुक जाती है। भक्ति करते हुए भी भरत महाराज ने मृग के प्रति अत्यधिक आसक्त होने पर किसी गुरु से सलाह नहीं ली। फलतः वे मृग से अत्यधिक आसक्त हो गए और अपने नैतिक कर्म भूल जाने से नीचे गिर गए। फिर से अनुवाद है। मैं पूर्व जन्म में महाराज भरत के नाम से विख्यात था। मैंने प्रत्यक्ष अनुभव तथा वेद ज्ञान से प्राप्त अप्रत्यक्ष अनुभव द्वारा सांसारिक कार्यों से पूर्णतया विरक्त होकर सिद्धि प्राप्त की। मैं पूर्णतया भगवान की सेवा में तत्पर रहता था, किंतु दुर्भाग्यवश में एक छोटे से मृग के प्रति इतना आसक्त हो उठा कि मैंने सारे आध्यात्मिक कर्तव्यों की उपेक्षा कर दी। मृग के प्रति प्रगाढ़ स्नेह के कारण अगले जन्म में मुझे मृग का शरीर अंगीकार करना पड़ा। ओम ज्ञान तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीगुरुपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवंश्च श्रीरूपं सग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं सद्वैतं सवधूतं परिजनं। श्रीराधा कृष्ण पदान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कंस राधा कंस नमोस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री गौर भक्त। हरे कृष्ण 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 इस श्लोक का उच्चारण भरत महाराज कर रहे हैं और पिछले श्लोकों में आपने पढ़ा कि किस प्रकार महाराज रघुनाथ को शिक्षा प्राप्त हो रही है जद भारत के द्वारा। यही जद भारत पूर्व जन्म में भारत महाराज है। तो यहाँ एक भारत महाराज कह रहे हैं, पूरे पूर्व जन्म में मुझे भारत महाराज के नाम से जानते थे। ये पूरी कथा आप सुन बैठे हो, क्योंकि इस श्लोक में इसका वर्णन है, हम संक्षेप में सुनाएंगे। भारत महाराज भगवान ऋषभदेव के सबसे बड़े पुत्र थे। ऋषभदेव कौन? ऋषिदेव भी भगवान के अवतार हैं। भगवान के अवतारों में ऋषभदेव का वर्णन प्राप्त होता है। और उनके 100 बेटे थे।
सबको उन्होंने आध्यात्मिक शिक्षा दी और फिर अपने सबसे बड़े बेटे भारत को राज्य की जिम्मेदारी दी। प्राचीन समय में जो राजा होते थे वो केवल राजा नहीं होते थे, राज ऋषि होते थे। दूसरे शब्द में उनके पास पूरा ज्ञान था, आध्यात्मिक ज्ञान। उनका शासन ऐसे होता था कि पूरी प्रजा सुखी रहती थी। जैसे आज भी आप राम राज्य की चर्चा करते हो। क्यों? क्योंकि राम राज्य के समय समाज में किसी प्रकार का कष्ट नहीं था। मृत्यु भी आपसे पूछ कर आती थी। आपको ये छूट दे दिया जाए, आज तुम सुन सकते हो, मृत्यु के समय कोई चुनेगा? सारे शमशान घाट बंद हो जाएंगे। पर प्राचीन राम राज्य के समय कोई किसी प्रकार का कष्ट नहीं था, कोई बुढ़ापापन नहीं, कोई रोग नहीं, कोई डॉक्टर नहीं, कोई ये G19 नहीं, कुछ नहीं। पूरा समाज सुखी था। और भारत महाराज के राज्य के समय उसी प्रकार से पूरा समाज सुखी था। किसी प्रकार का कष्ट नहीं था समाज में, वो पूरी प्रजा खुश थी। तो भगवान ऋषिदेव ने बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा दी है, जो आप इसका 5वें स्कंद के 5वें अध्याय में प्राप्त करते हो। और उन्होंने अपने सबसे बड़े बेटे को राज्य दिया। भारत महाराज का राज्य इतना शुद्ध था, लोग इतने सुखी थे, ये पूरे पृथ्वी का नाम बदल दिया। क्या बन गया? भारतवर्ष। खैर, भारतवर्ष एक रूप से आज भी आप इस नाम का उपयोग करते हो। आज भी लोग कहते हैं हम भारत के हैं, पर आज का भारत और भारतवर्ष उस समय का दिन रात का अंतर है। उस समय पूरे पृथ्वी का एक ही राजा था। भारत महाराज ने शासन किया, पर फिर वो देख सके कि भौतिक संसार में क्लेश ही क्लेश है, और वो देख सके कि अंत में हमें परम भगवान के शरणागत होना चाहिए। तो भारत महाराज ने राज्य त्याग दिया, अपने भाइयों को दे दिया, और वो चले जंगल में भगवान की तपस्या करने के लिए। और जंगल में भगवान की तपस्या कर रहे थे, पर एक दिन उन्होंने देखा एक डियर, मृगा, एक मृग छलांग मार रही है अपनी जान को बचाने के लिए। किससे? शेर से। शेर पीछा कर रहा था, और माँ मर गई, पर और उसका जो घर में बच्चा था वो बाहर गिर गया। भारत महाराज ने सोचा शायद ये भगवान की इच्छा है कि मैं इस मृग की देखभाल करूं, और उन्होंने मृग की देखभाल आरंभ कर दी। और इतना गहरा आकर्षण हो गया था कि वो मृग अगर एक पल के लिए भी नजरों से दूर होता था, भारत महाराज घबरा जाते थे। कहाँ गया मेरा बेटा, कहाँ गया मेरी। और खाते समय भी मृग को साथ में बिठाते थे। और एक दिन जब वो मृग को खोज रहे थे, और खोजते खोजते क्या हो गया, उन्हें शरीर त्यागना पड़ा। भगवत गीता में कहा गया है, जहाँ आपका मन होगा मृत्यु के समय, उस प्रकार का ध्येय आपको प्राप्त करना पड़ेगा। ये हमें वापिस स्मरण हो, यह बहुत बड़ी कला है। इसलिए गीता में भगवान कहते हैं अंते नारायण स्मृति,
हम सबको इस प्रकार की योजना करनी चाहिए कि मृत्यु के समय आपका मन ठीक स्थान पर हो, मृत्यु के समय आप भगवान का स्मरण कर सको। और शास्त्र में अनेक उदाहरण हैं, जैसे आप यहाँ महाराज भारत का उदाहरण देख रहे हो, किस तरह वो एक मृग के प्रति आकर्षित हो गए और उसका क्या परिणाम भुगतना पड़ा, उन्हें मृग का देह प्राप्त हो गया। पर ज़्यादा देर इस देह में नहीं रहना पड़ा, क्योंकि उन्होंने सेवा भी की थी। भक्ति योग की इतनी शक्ति है कि अगर आप तुच्छ सेवा भी करोगे, तुच्छ, इसका आपको लाभ आता है और ये सेवा आपके साथ रहती है। भौतिक संसार में मान लो अपने पैसे जोड़े हैं बैंक में, शरीर को त्यागने से पैसा भी समाप्त हो जाता है। पर भक्ति योग का इतना लाभ है कि आप तुच्छ सेवा भी करोगे, अज्ञानता से भी वो आपके साथ रहेगी। महान संत श्रीराज स्वामी कहते हैं भक्ति योग में इतनी शक्ति है कि अगर आप आंख बंद करके दौड़ोगे तो भी गिरोगे नहीं। आप आंख बंद करके दौड़ोगे, गिरोगे नहीं, गिरोगे। पर भक्ति योग में इतनी शक्ति है, आंख बंद करके भी दौड़ोगे, गिरोगे नहीं। दूसरे शब्दों में ये जो लाभ है ये आपके साथ हमेशा रहता है। तो मृग का जन्म ग्रहण किया, पर ज़्यादा देर नहीं रहे इस देह में, और कहाँ पहुँचे, उन्हें फिर जन्म मिला एक ब्राह्मण कुल में। ब्राह्मण कुल में माँ पिता ने बहुत प्रयास किया अपने बेटे को आध्यात्मिक ज्ञान देने के लिए, पर बेटे की किसी चीज़ में रुचि नहीं थी, क्योंकि बेटा समझ गया था कि मैंने पूर्व जन्म में गलती की है, नाउ आई डोंट वांट टू रिपीट इट एट एनी कॉस्ट। तो इसलिए उनका व्यवहार था गूंगे और बहरे व्यक्ति का। और आप पढ़ते आए हो कि किस प्रकार जब भारत ने महाराज रघुगना को शिक्षा दी। तो महाराज रघुगना को शिक्षा दे रहे हैं इस पूरे अध्याय में, और पिछले अध्याय में भी, और अगले अध्याय में भी ये कथा चलेगी। आप ये कथा जद भारत की कथा, महाराज ऋषिदेव की कथा कब से सुनते आ रहे हो, तो जब ये कोई थकता नहीं है। तो जद भारत ने बड़ा महत्वपूर्ण शिक्षा दी, और इन सब अध्यायों में और इस श्लोक के तात्पर्य के आरंभ में कहा गया है कि संतों की सेवा के बिना आध्यात्मिक जीवन में उन्नति संभव नहीं हो सकती। You can't progress in spiritual life without serving the lotus feet of the great Mahatma. और इस विषय में कई श्लोक हैं हमारे शास्त्र में। उदाहरण के लिए भगवान ऋषिदेव ने कहा, पहले तो उन्होंने कहा ना हम देहा देहा बाजर मिलो के, कि इस मनुष्य जीवन का दुरुपयोग मत करो, पर उपयोग करो किस लिए, भगवान की सेवा में। आगे वो कहते हैं महत सेवा, जब तक तुम संतों की सेवा नहीं करोगे, जब तक तुमने एक शुद्ध भक्त की शरण नहीं ली हो, जब तक तुम भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाओगे। और 3 स्कंद में इसी विषय के ऊपर भगवान कपिलदेव भी कहते हैं। भगवान कपिलदेव की माता नाम था देवहूति। तो देवहूति को पता था मेरा बेटा भगवान का अवतार है, तो
उन्होंने पूछा, ये बताओ कैसे इस भौतिक संघर्ष से हमें छुटकारा प्राप्त होना चाहिए। हम सबको पूछना चाहिए जीवन का क्या लक्ष्य। जब सनातन गोस्वामी उनके भाई महाप्रभु से मिले तो उन्होंने क्या कहा कि हमें समाज में लोग हमें बड़ा आदर देते हैं, पर हम ये भी नहीं जानते कि हम हैं कौन। तो ये प्रश्न सबको पूछना चाहिए। आजकल आप देखते हो बड़े बड़े महाविद्यालय हैं, पाठशाला है, तो कहाँ भी ये दिव्य ज्ञान नहीं दिया जा रहा। ये दिव्य ज्ञान केवल ISKCON और कुछ संस्थाओं के द्वारा दिया जा रहा है। तो यहाँ कहा क्या है, संतों की सेवा करो, संतों की संगत में रहो। तो देवहूति माता का प्रश्न था, तो भगवान के पिला देव ने उनका प्रश्न था, ये शिक्षा दो कि कैसे हम इस भौतिक संघर्ष से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। और भगवान के पिला देव ने कहा, संतों की संगत, वही आसक्ति संतों के प्रति रखो और भौतिकवादियों के प्रति यह आसक्ति तोड़ो। आगे वो कहते हैं कि भक्तों के संग में रहोगे तो श्रवणम कीर्तनम ज़्यादा सरल आ जाता है। तो इस अध्याय में भागवतम के 30वें स्कंद में के 25वें अध्याय में, इसका नाम है भक्ति योग, अनेक 4 बड़े प्रसिद्ध श्लोक है जिनका एक ही संदेश है। वो है कि भक्तों की सेवा के बिना, साधु सेवा के बिना आध्यात्मिक उन्नति असंभव है। तो ये होना चाहिए हम सबका भाव कि हम संतों की संगत में रहें, संतों की सेवा भी करें और जो ज्ञान प्राप्त होता है उसका लाभ उठाएं। तो यहाँ इस अध्याय में भारत महाराज क्या कर रहे हैं, वो इसी विषय की स्थापना कर रहे हैं बार बार। और भागवतम के 30वें स्कंद में, 5वें स्कंद में, अनेक श्लोकों में इसी विषय पर बल दिया जाता है। तो यहाँ तात्पर्य में प्रभु जी कह रहे हैं, ये तो भारत महाराज कह रहे हैं अनुवाद में, कि मैं समझ गया था पूर्व जन्म में कि भौतिक संसार में क्लेश ही क्लेश है, कष्ट ही कष्ट है। और ये ज्ञान मुझे वेदों से भी प्राप्त हुआ था। एक तो वो खुद अनुभव कर सके कि भौतिक समाज में कोई सुख नहीं है। प्रहलाद महाराज क्या कहते हैं, मैं जब देखता हूँ कि भौतिकवादी व्यक्ति दुख की स्थिति को सुख में बदलने का प्रयास कर रहे हैं, मुझे दुख होता है। जैसे आजकल क्या किया जा रहा है, मान लो आप अपने चेहरे में बुढ़ापेपन के लक्षण प्रकट कर रहे हो, तो जो जिनके पास पैसा है वो क्या करते हैं, कॉस्मेटिक सर्जरी। तो आप 15 साल जवान दिख लो, तो जवान देख भी लो, कब तक देख पाओगे। तो पर भारत महाराज समझ गए कि राजा भी हूँ, जब भी ये जो 7 प्रकार के कष्ट हैं इनसे किसी को मुक्ति नहीं मिलेगी। तो इसलिए भारत महाराज ने खुद ही राज्य को त्यागा। ये नहीं कि किसी ने उसे कहा निकलो तुम उठो कुर्सी खाली करो, नहीं। आजकल तो कुर्सी कोई खाली करता है नहीं। पापा जी कहते हैं कुर्सी खाली होती है
जब असैसिनेशन हो जाए या इलेक्शन में हारो, वॉलंटियरली कोई सीट खाली करता है नहीं, पर भारत महाराज ने खुद ही त्यागा, क्योंकि वो देख सके कि बौद्धिक समाज में सुख नहीं है। और साथ में उन्होंने वैदिक संदेश का भी उपयोग किया। वेदों का सार वेदांत सूत्र में है, और शास्त्र वेदों में क्या है, अर्थात ब्रह्मा जिज्ञासा। अब यह मनुष्य मानव देह प्राप्त हुआ है, इसके द्वारा जिज्ञासा करो। तो ये है ह्यूमन लाइफ। तो यहाँ कहा जा रहा है कि भारत महाराज ने अनुभव किया और वैदिक शास्त्रों द्वारा ज्ञान प्राप्त किया कि भौतिक संसार में कोई सुख नहीं है और असली सुख चाहिए। हमें भगवान के शरणागत हो रहा है। तो भगवान के शरणागत होने के लिए संतों की संगत आवश्यक है। संतों की संगत ही नहीं पर सेवा भी साथ में। तात्पर्य में प्रपद कहते हैं प्रमाणिक गुरु की सेवा करो। इस विषय की चर्चा शास्त्र में है कि हमें प्रमाणिक गुरु की शरण लेनी चाहिए। और प्रमाणिक गुरु के विषय में रूपा गोस्वामी क्या कहते हैं, वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम जीव वेगम उदार परस्त वेगम। जिस व्यक्ति ने मान बुद्धि इंद्रियों को वश में किया वो ही इस सेवा को निभा सकता है। दूसरे शब्द में गुरु को अपने उदाहरण से ये शिक्षा दे दी है। और शिष्य का क्या प्रभाव होना चाहिए गुरु के प्रति सेवा का। आप चैतन्य चैतन्य में कथा पढ़ते हो, मानंदपुरी उनके शिष्य थे, रामचंद्र पुरी और ईश्वर पुरी। और अनेक शिष्यों में इन दो का नाम था, ईश्वर पुरी और रामचंद्र पुरी। और मानंद पुरी तो बहुत ऊंचे कोटि के संत थे। ईश्वर पुरी ने बड़े विनम्रता के साथ अपने गुरु की सेवा की। बूढ़ी आयु में उन्हें कंधे में उठाते थे, उनके मल को साफ करते थे। रामचंद्र पुरी इसकी तुलना में अक्सर नुक्स निकालते रहता था। उनमें ये आदत थी नुक्स निकालने की। तो उदाहरण के लिए जब सन्यासी संत आते थे जगन्नाथ पुरी, वो पहुंच जाते थे उनके पास बड़ा प्रसादम का की थाली लेकर। जब ये संत कहते थे नहीं जी हम तो सन्यासी है, इतना नहीं खाना चाहिए, लोग हंसेंगे। नहीं, ये तो महाप्रसाद है, ये नहीं खाइए, नहीं खाओगे तो पाप कहेगा। तो खा लेते थे। और जब खा लेते थे तो कहते थे देखो ढोंगी सन्यासी, सन्यास लिया है त्याग का जीवन बिताने के बजाय ऐश का जीवन बिताने। तो इस प्रकार इनकी आदत थी संतों में नुक्स निकालने की। और एक दिन माधवपुरी जब निम्रता से, माधवपुरी बहुत ही विनम्र भाव के भक्त थे, कभी किसी से कुछ मांगा नहीं उन्होंने। 24 घंटे निरंतर भगवान के नामों का उच्चारण करते थे। तो वो ये भाव प्रकट कर रहे थे कि मेरा जीवन सफल नहीं हुआ है। और रामचंद्र पुरी जब ये सुना तो वो गुरु को उपदेश देने लगा मायावादी सिद्धांत का। गुरु इतने
दुखी हुए उनके व्यवहार को देखकर गुरु ने कहा चले जाओ इन नजरों से दूर, तुम्हें देखते हुए श्री त्यागा तो जीवन असफल माना जाएगा। ये हुआ परिणाम, क्योंकि वो वैष्णव अपराध करते थे, पहले सन्यासियों के प्रति, फिर अपने गुरु के प्रति भी अपराध कर रहे थे। इसकी तुलना में ईश्वरपुरी बड़ा विनम्रता का भाव। तो गुरु ने ईश्वरपुरी को तो आशीर्वाद दी, तो कहा तुम सारे विश्व में भगवान का प्रचार करोगे, जो कि उन्होंने किया चैतन्य महाप्रभु के माध्यम से। और रामचंद्रपुरी उसे तो गुरु ने कहा था नजरों से दूर जाने का। तो यहाँ तात्पर्य में प्रभु जी कह रहे हैं, एक तो संतों की सेवा करो, और संतों की सेवा के विषय में हम ज्ञान कहाँ से प्राप्त करते हैं? गुरु साधु शास्त्र। आगे प्रभु जी तात्पर्य में कह रहे हैं कि हमें माने गुरु द्वारा ये ज्ञान प्राप्त करना चाहिए और ज्ञान का पालन करना चाहिए। तो प्रमाणिक गुरु के द्वारा हमें आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है। इसलिए भगवत गीता के 4 अध्याय में भी भगवान कहते हैं तद्विधि प्राणिपते न प्राणिपिशु न सेवा, आत्मज्ञानी व्यक्ति की सेवा करो। चैतन्य महाप्रभु ने कहा पहले कदम में शरण लो, फिर सेवा करो, फिर दीक्षा लो, फिर पूछो मुझे क्या त्यागना चाहिए भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। जब हम भक्ति के मार्ग में जुड़ते हैं तो हमें कई कार्य अनुकूल होते हैं, कई प्रतिकूल होते हैं। जो प्रतिकूल कार्य है ऊपर गोस्वामी कहते हैं उसे त्यागो, किसी कीमत पर भी त्यागो, और फिर आप भक्ति में आगे बढ़ सकोगे। सनातन गोस्वामी को महाप्रभु ने क्या कहा? भगवान के शरणागत होने के लिए सबसे पहला क्या आदेश था? जो भक्ति के लिए अनुकूल है उसे स्वीकार करो, और जो प्रतिकूल है उसे त्यागो। तो जो अनुकूल है वो स्वीकार करो, जो प्रतिकूल है उसे त्यागो। और रूप गोस्वामी कहते हैं जो भी कीमत भरनी पड़े भरो, पर जो प्रतिकूल है उसे त्यागो। तो ये बहुत आवश्यक है। अनुकूल क्या है? अनुकूल है अच्छी साधना रखना। अच्छी साधना रखोगे तो भौतिक संघर्ष ज़्यादा सरल हो जाएगा, और साधना कमज़ोर होएगी तो भौतिक आकर्षण रहेगा। रूप गोस्वामी कहते हैं भगवान के जो दिव्य नाम हैं वो चीनी जैसे मीठे हैं, भगवान की जो लीलाएं हैं वो भी मीठी हैं, भगवान के जो गुण हैं ये सब मीठे हैं। इसका अर्थ है इन सब के प्रति हमारा आकर्षण रहना चाहिए। पर क्योंकि हमारे जीव में अविद्या की बीमारी है, इसलिए हमें इसका मीठापन महसूस नहीं होता। तो ये अविद्या की बीमारी का इलाज है या नहीं है? क्या है? ये भक्ति योग जो हमें दी जाती है, ये है अविद्या का बीमारी का इलाज। तो रूप गोस्वामी कहते हैं अगर हम भक्ति की विधियों का पालन करेंगे तो ये जो अज्ञानता की बीमारी है उसे हम दूर कर सकेंगे। तो ये है उपदेश गुरु द्वारा कि जो प्रतिकूल है उसे त्यागो। अनुकूल में क्या? भक्तों के संग में सेवा करना, जाप करना, ये सब है अनुकूल कार्य। और जो प्रतिकूल है साधना नहीं रखना,
ध्यान से जाप नहीं करना, प्रजल्प करना। प्रजल्प हमारा शत्रु है। रूप गोस्वामी क्या कहते हैं, हता-arthaḥ प्रजल्प नामा करो। तो रूप गोस्वामी ने हमें अपने ग्रंथों में हर विषय का ज्ञान दिया है, और प्रभुपाद जी ने इन ग्रंथों को लेकर आगे तात्पर्य में बड़े गहराई के साथ हमें पूरा ज्ञान दिया है कि किस प्रकार आप बढ़ सकते हो आगे, किस प्रकार भक्ति नष्ट हो जाती है। एक समय हमारा विचार था एक वैदिक रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाया जाए, क्योंकि उस समय आज भी ये नियम था कि अगर कोई रिसर्च इंस्टीट्यूट हो तो सरकार आपको छूट देती है इनकम टैक्स में। तो हम प्रभुपाद के पास गए हैं, इसकी चर्चा की। प्रभुपाद ने कहा, वाई वी क्रिएट वैदिक इंस्टीट्यूट, ऑल द रिसर्च इज ऑलरेडी डन बाय व्यासदेव, सो नो नीड टू डू एनी रिसर्च। सो वैदिक संदेश जो है ये सनातन है, और ये है पूरे मानव समाज का। तो गुरु के संदेश का प्रचार करना चाहिए। तो तात्पर्य में प्रभु जी कह रहे हैं कि इस आध्यात्मिक शिक्षा का पालन करो। चैतन्य महाप्रभु जब प्रचार कर रहे थे वो आए वाराणसी में, और वाराणसी में उस समय एक सभा चल रही थी मायावादी सन्यासियों की। तो ये जो मायावादी सन्यासी थे वो बकायदा महाप्रभु की निंदा करते थे। संन्यास ले लिया है पर हमारे साथ बैठकर वेदांत सूत्र का अध्ययन नहीं करते और पागलों जैसे नाचते रहते। महाप्रभु तो सह रहे थे, उनके जो भक्त थे वहाँ तपद मिश्रा, चंद्रशेखर इत्यादि, उनसे ये आलोचना सह नहीं पाए। कहा जाता है भक्त सह लेता है आलोचना, पर जो उनके दूसरे वैष्णव भक्त हैं वो नहीं सह सकते। तो जब महाप्रभु उधर आए, मेरे भक्तों ने कहा ये आपकी इतनी निंदा हो रही है, आप चलिए उनके पास। उन्हें पता था कि महाप्रभु से नियमित रूप से मायावादियों के घर में कभी जाते नहीं हैं, उनसे कोई संगत नहीं रखते। पर महाप्रभु ये भी देख रहे थे कि उनके जो भक्त थे वो अत्यंत दुखी थे, क्योंकि बार बार उन्हें महाप्रभु की निंदा के विषय में सुनना पड़ता था। तो महाप्रभु मान गए और महाप्रभु गए इस महाराष्ट्र ब्राह्मण के घर में। और महाराष्ट्र ब्राह्मण ने मायावादियों को भी बुलाया था और महाप्रभु को भी। महाप्रभु का उद्देश्य था पूरे समाज को भक्ति योग से जोड़ना, इसलिए महाप्रभु को सबसे दयालु अवतार माना जाता है। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया कोरा मोरे, तुम बिना के दयालु जगदा संसार है। पतित पवान हेतु तव अवतारा, मोह सम पतिता प्रभु ना भय बिहारा। तो सब अवतारों में महाप्रभु सबसे दयालु अवतार माना जाता। तो महाप्रभु जब वहाँ पहुँचे तो उन्होंने अपनी दिव्य लीला प्रकट की। उन्होंने अपने चेहरे से इतनी रोशनी प्रकाशित हुई कि जो मंच पर बैठे थे उन सबको लगा कि इस सन्यासी के चेहरे से लाखों सूर्यों के प्रकाश के बराबर दिखाई दे रहा था। तो सन्यासी समझ गए
ये कोई साधारण सन्यासी नहीं है, ये भगवान की शक्ति है। तो उन्हें प्रकाशानंद सरस्वती तो इन सब के गुरु थे, वो आए, पकड़ कर ऊपर ले गए और चर्चा हुई। जब उन्होंने कहा कि आप शास्त्र वेदांत क्यों नहीं पढ़ते हमारे साथ, कि महाप्रभु तो छोटी आयु में ही संस्कृत के बड़े विद्वान बन गए थे। छोटी आयु में ही उन्होंने सब प्रसिद्ध प्रचारक, संस्कृत के विद्यार्थी, केशव कश्मीरी इत्यादि सबको हरा दिया था। तो पूरे भारत में सबको पता था कि बहुत बड़े संस्कृत के विद्वान हैं। तो महाप्रभु ने अनेक श्लोकों द्वारा ये स्थापित किया कि इन वेदों का असली सार यह है कि इस कलयुग में भगवत प्राप्ति के लिए क्या है आवश्यक, ये भक्ति योग का हरिनाम का उच्चारण। और उन्होंने कहा कि मेरे गुरु ने देखा और कहा मुझे, तुम तो मूर्ख हो, तुम्हारे में ज़्यादा योग्यता नहीं है। और उनके प्रचार के द्वारा सारे मायावादी सन्यासी वैष्णव बन गए। तो महाप्रभु की विनम्रता देखिए, उन्होंने कहा, मेरे गुरु ने कहा कि तुम्हारे में ज़्यादा योग्यता नहीं है, तुम केवल ये महामंत्र के योग्य हो। तो ये है विनम्रता का भाव। तो यहाँ तात्पर्य में प्रभा जी कह रहे थे कि गुरु की शरण लेना और ये सोचना कि हम ज़्यादा होशियार हैं, ये भक्ति के लिए प्रतिकूल है। एक और उदाहरण प्रभुपाद जी ने दिया, उन्होंने कहा कि एक दौड़ता हुआ घोड़ा जमीन से दौड़ते हुए घास को नहीं खा सकता। तो इसी प्रकार प्रभुपाद ने कहा कि अगर कोई सोचे कि मैंने गुरु को उपदेश देना है इत्यादि, वो संभव नहीं है। ऐसे प्रभुपाद ने कहा कि 3 प्रकार के शिष्य होते हैं आध्यात्मिक जीवन में। सबसे उत्तम कोटि का शिष्य है जो कि जानता है गुरु की क्या इच्छा है। गुरु की इच्छा है अच्छी साधना रखो, जप करो इत्यादि, और बोले बगैर इसका पालन करता है। दूसरे श्रेणी का शिष्य ये है, उसे शिक्षा दी जाती है, जैसे कि भक्ति योग का पालन और सादा भक्ति का पालन, और उसे कहा जाता है अगर आपने भक्ति में आगे बढ़ना है तो इसका पालन आवश्यक है। वो कहता है यस आई विल डू इट, हाँ मैं करूँगा, ये मेरे उद्धार के लिए है, मेरे सुधार के लिए। तो पहले श्रेणी का भक्त जानता है क्या करना चाहिए, सुन बैठा है, पढ़ बैठा है। जैसे कि अगर आप प्रॉपर की किताबों को पढ़ो तो बड़े स्पष्ट रूप से इस विषय हरिनाम की महिमा इत्यादि का ज्ञान दिया जाता है। और तो बोले बगैर हम जान सकते हैं कि ये लाभ है। दूसरे श्रेणी का शिष्य, उसको बोला जाए और फिर उसका पालन करता है। और तीसरे श्रेणी का शिष्य, चाहे कुछ भी बोलो, उन्होंने करना है अपना मनमानी। तो प्रभा जी कहते थे यू डिसाइड व्हाट यू वांट, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास। और जितनी श्रद्धा में, जितनी मात्रा में शरण लेंगे उसी के अनुसार नतीजा भी होगा। तो गुरु की शरण लेना, संदेश का पालन करना और ये नियमों का पालन करना, ये आवश्यक है अगर हम भक्ति योग में आगे बढ़ना चाहते हैं। और भक्तों के संग में रहकर तीसरे श्रेणी का भक्त भी
दूसरे श्रेणी का भक्त बन सकता है। ये नहीं कि जो थर्ड क्लास में है हमेशा थर्ड क्लास में रहेगा। ये निर्भर है हमारे प्रयास के ऊपर। गॉड हेल्प्स दोज हू, हाँ, भगवान उनका सहयोग करते हैं तो स्वयं प्रचार करते। तो चैतन्य महाप्रभु ने ये उपदेश दिया है। तो यहाँ इस भागवतम के अध्याय में यही भक्ति योग का ज्ञान बार बार दिया जा रहा है, यही ज्ञान दिया जा रहा है। और इसका अगर हम लाभ उठाएं, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस इज पॉसिबल। श्रीमद्-भागवतम का जो संदेश है बहुत ही महत्वपूर्ण है। व्यासदेव ने सारे शास्त्रों की रचना की थी जब भी वो संतुष्ट नहीं थे, और फिर उन्होंने हमें ये भगवत का ज्ञान दिया है। तो इन श्लोकों में हम पढ़ रहे हैं भक्ति योग की आवश्यकता और प्रमाणिक गुरु की शिक्षा का पालन करना। तो चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए थे किस लिए? इस भक्ति योग का प्रचार, और हर प्रकार के व्यक्ति को उन्होंने जोड़ा हरिनाम के प्रति। एक समय एक सभा थी जिसमें महाप्रभु मिले थे बुद्धिस्ट लोगों से। तो महाप्रभु ने अपने डिबेट में बुद्धिस्टों को हरा दिया। तो उन्होंने बड़ा अपमान महसूस किया और उन्होंने सोचा हमें बदला लेने दो। वो वापस लौटे एक थाली में सड़ा हुआ भोजन रखकर, और गुरु जी के पास गए, बुद्धिस्ट के बुद्धि इसके साथ, और कहने लगे यहाँ महाप्रसाद आए आपके लिए, स्वीकार करो। और जैसे वो प्लेट दे रहे थे, एक बाज आई ऊपर से जिसने सड़ा हुआ खाना तो खा लिया और पेट को गिरा दिया किसके सिर पर? गुरु जी के सिर पर। गुरु जी बेहोश हो गए। शिष्य मान गए यह हमारा शैतान मन था जिसके कारण यह परिणाम हुआ है। तो सबने कहा कि बचाओ बचाओ। वो सब ने अपनी गलती स्वीकार की। महाप्रभु ने उन्हें क्या कहा? जाओ लोगों के कानों में हरि नाम को उच्चारण करो। जैसे उच्चारण किया सारे वैष्णव, सारे बुद्धिस्ट वैष्णव बन गए। इस प्रकार महाप्रभु के प्रचार से सब प्रकार के व्यक्ति जुड़े हुए। एक भक्त थे सुबुद्धि रॉय, उनका एक भक्त थे सुबुद्धि रॉय, ये हैं सुबुद्धि रॉय दास। वो है ओरिजिनल सुबुद्धि रॉय, ये हैं डुप्लीकेट। तो सुबुद्धि रॉय एक समय तो बड़ा धनी था और उसके पास एक नौकर था हुसैन शाह। तो चापलूसी करके सुबुद्धि रॉय साधारण व्यक्ति बन गया और वो उनकी जो संपत्ति थी वो पहुंच गई नवाब के हाथों में। एक दिन नवाब की पत्नी ने देखा उसके पति के पीठ में एक लकीर की निशानी है। उसने पूछा, अरे ये लकीर की निशानी कहाँ से लग गई, ये कैसे लगा? तो उसने कहा कि पहले जब मैं सुबुद्धि रॉय के पास नौकरी कर रहा था, मैंने गलती की थी जिसके कारण उन्होंने चाबुक से मारा था, इसकी निशानी। तो उसने कहा अब तो तुम राजा बन गए हो, अब तो मार दो इसे, बदला लो। क्या हिम्मत है उसकी तुम्हें मारने की? तो इसने पति ने कहा
उसने मुझे बेटे जैसे पाला था, मैं कुछ नहीं कर सकता। अच्छा तो कम से कम उन्हें मुसलमान तो बना दो, तो मारना नहीं चाहते हैं। उन दिनों में मुसलमान बनना बड़ा आसान था। प्रभुपाद इसका विरोध करते हैं कई लेक्चर्स में। अगर आपने मुसलमान के घर में नौकरी स्वीकार कर ली तो हिंदू समाज के बाहर। रूप और सनातन कभी जगन्नाथपुरी मंदिर में नहीं गए दर्शन के लिए। अगर आपने किसी मुसलमान के यहाँ कुछ भी खा लिया तो समाज के बाहर। तो हुसैन शाह ने कहा ठीक है मैं उसे मुसलमान बना देता हूँ। एक बाल्टी में पानी लाकर पानी उन पर थोड़ा फेंक दिया तो बन गए मुसलमान। घर वालों ने तो घर के बाहर कर दिया और पूरा समाज कहने लगा अब तो तुम हमारे समाज में नहीं रह सकते। सिबुदी रॉय चिंता में था क्या किया जाए। वो गए वाराणसी और उन्होंने वहाँ ब्राह्मणों से पूछा अब मैं क्या करूं, मुझे मुसलमान बना दिया है। तो उन ब्राह्मणों ने कहा तुम्हें तो उबलते हुए घी को खा लेना चाहिए और आत्महत्या करनी चाहिए। सुबुदी रॉय इससे संतोष नहीं था। तो फिर वो गए महाप्रभु के पास इस समस्या के साथ। महाप्रभु ने कहा क्या कहा तुम वृंदावन जाओ वो हरि नाम का उच्चारण करो, आत्महत्या की कोई जरूरत नहीं। वो वृंदावन गए और छोटा सा धंधा था उनका। उस धंधे में वो 5 पैसा महीने में कमाते थे और अपने खर्चे के लिए 1 पैसे का चिक भी खाते थे पूरे महीने। 5 पैसे आमदन थी, उसमें 1 पैसा खर्चते थे अपने खर्चे के लिए, अपनी रोटी के लिए, और जो बाकी पैसा बचता था उससे वैष्णवी विधवाओं की सेवा करते थे। देखो क्या त्याग। 5 पैसे में अपने पेट के लिए 1 पैसे का खर्चा पूरे महीने में, बाकी 4 पैसे वो देते थे किसे, वैष्णवों की सेवा में। बूढ़ी औरतें जो आती हैं वृंदावन, उनको दही देना, उनके लिए भोजन देना। तो देखो इतना त्याग। यही सुबुदी रॉय फिर गोस्वामी को लेकर सब आश्रमों का उन्होंने दर्शन किया। तो आप देख सकते हो क्या त्याग। 1 पैसा अपने लिए और बाकी सब भगवान के लिए। जैसे ये खोला बच्चे श्रीदास, उनका भी छोटा व्यापार था और 50% वो रखते थे किसके लिए, गंगा की सेवा में। तो ये है त्याग। तो यहाँ इस श्लोक में जद भारत कह रहे हैं कि मैं भी अपने पूर्व जन्म में भारत महाराज था। भारत महाराज जद भारत, इनके पास खास योग्यता थी। आप और हम अपने पूर्व जन्मों को याद नहीं कर सकते। इतना जरूर है जो भक्त बनते हैं कि पूर्व जन्म में भी अपने भक्ति की है। अभी भगवान आपको मौका दे रहे हैं अपनी भक्ति को समाप्त करने का, कंप्लीटिंग योर भक्ति। तो हमें बड़ी गंभीरता से लेना चाहिए और ये जो शिक्षा है इसका पूरा लाभ उठाना चाहिए। आज के वातावरण में एक रूप से प्रचार थोड़ा कठिन बन रहा है। जैसे कि आप बुक डिस्ट्रीब्यूशन जैसे करते थे, अब थोड़ा कठिन हो गया है। ये समस्या आएंगी, पर समस्या आएंगी, पर हमें घबराना नहीं चाहिए। वी शुड बी डिटरमिन्ड। और भगवान बुद्धि देते हैं कैसे सेवा करने के। हमें हर स्थिति में तैयार रहना चाहिए सेवा के लिए। अभी जन्माष्टमी आ रही है, अनेक उत्सव आ रहे हैं, हमें तैयार रहना चाहिए सेवा के लिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए
अब कलियुग का बहुत आगे बढ़ गया है, कोई उपाय नहीं है। मांग लगाएंगे तो उपाय प्राप्त हो सकता है, और भक्तों के संग में रहकर ये भक्ति की नियमों का पालन ज़्यादा सरल हो जाता है। तो आज के श्लोक में जब भारत शिक्षा दे रहे हैं, और इस अध्याय में सबसे ज़्यादा बल उन्होंने दिया है साधु संग के ऊपर और संतों की सेवा के ऊपर। और भक्ति का पालन विनम्रता के भाव में करोगे तो भक्ति में आगे बढ़ सकोगे। तो यह संदेश हमें बड़े ध्यान से सुनना चाहिए। प्रमाणिक गुरु द्वारा दिव्य ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, और पालन करेंगे तो भक्ति में आप आगे बढ़ पाओगे। ये आवश्यक है। ये है संदेश आज के श्लोक का। हरे कृष्णा। Any questions? Yes. Hare Krishna, Guru Maharaj. Thank you for the nice lecture. All the good things are in the book. We just repeat it. Yeah. Okay. So, Guru Maharaj, my question is related to this point of change of religion for Rupa and Sanatan Goswami. So, in one sense, they were just working under the Nawab Hussain, but their heart was for Chaitanya Mahaprabhu only. So, but then, why did they consider themselves as not qualified to take darshan of Lord Jagannath in that sense? Or well, the Hindu Samaj at that time was very rigid, so therefore they didn't even try to go. That's what we know. That was a tradition in the Hindu Samaj. So even Haridas Thakur, he was a staunch Vaishnava, but he did not try to go inside. They voluntarily stayed out. so, in today's context, Guru Maharaj, there can be a possibility where a person is just working under is doing job or employed by a person who is of a different religion, maybe some That's okay. Muslim. Today is a whole different ball game. So many people work for Muslim employees, but that they don't. Today the Hindu society is also more broad-minded. Actually, Prabhupada was very critical of the Hindu society at that time. That's why Prabhupada says so many people became Muslims. That's why Pakistan was created, because the society was so rigid that many Hindus were thrown out. Okay. Okay, Guru Maharaj. Thank you. Yes. हरे कृष्णा गुरु महाराज जी। महाराज जी, जैसे पिछले श्लोक में भी वैष्णव की सेवा करने पे काफ़ी जोर दिया गया था कि वैष्णवों की चरणों की धूली हमें लेनी चाहिए, उससे हम लोग भक्ति में प्रोग्रेस करेंगे। और जैसे ब्राह्मणिकल क्वालिटीज़ हैं, ट्रूथफुलनेस है, चैरिटी है, वैदिक स्क्रिप्चर्स का पढ़ना है, उस पर इतना जोर नहीं था महाराज जी। तो क्या मतलब उसका इतना इम्पोर्टेंस होता है? और जैसे आपने भी कहा कि वैष्णव की सेवा से ही हम प्रोग्रेस करते हैं, और ये भी सुना है कि हमें वैष्णव से पहले एक ब्राह्मण बनना चाहिए। तो महाराज, आई वांट टू अंडरस्टैंड हाउ मच these other things are also important. Like what? Other things like celibacy and Vedic scriptures, or just if you follow this, serving the Vaishnava. They are all important. Celibacy. Yes, Maharaj. Is that what you said? Celibacy, brahmacharya and Vedic scriptures, many of the things were there. They are all important. That's why they are mentioned in the scriptures. Celibacy, studying the scriptures, austerity, these are all important. इन सब का महत्व है।
और इन सब के पालन से भक्ति ज़्यादा सरल बन जाती है। Is that your question? Yes, Maharaj. Yes. Yes. हरे कृष्ण गुरु महाराज। गुरु महाराज, मेरा प्रश्न है कि यहाँ पे वैष्णव के प्रति वैष्णव की सेवा और गुरु के आदेश का पालन और गुरु की सेवा की यहाँ पर जिक्र की गई है। मेरा प्रश्न है कि कभी कभी हम वरिष्ठ वैष्णवों को सेवा करना चाहते हैं, उनकी सेवा करना चाहते हैं, तो वाणी सेवा वापु सेवा दोनों पर जोर दी जा रही है। किस हद तक हमें वापु सेवा करनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी वरिष्ठ वैष्णव हमें करने नहीं देते और किसी भी प्रकार से वापु सेवा करने नहीं देते, पर्सनल सेवा में एंगेज नहीं करते, तो इसका बैलेंस हम कैसे लाएं कि क्योंकि कमी तो रहेगी, फिर हम सिर्फ वाणी सेवा का कोशिश कर रहे हैं, वापु सेवा तो हो ही नहीं रही है। दोनों सेवा आवश्यक है। वाणी इज परमानेंट, वापु इज शॉर्ट टर्म। वापु थोड़े समय के लिए रहेगा हरे का, वाणी इज लॉन्ग टर्म। तो जब हमें सेवा का मौका मिले, वी शुड कंसिडर आवरसेल्व्स वेरी फॉर्चुनेट। आप अगर शास्त्रों को पढ़ो, जैसे ये पूरे अध्याय में हर श्लोक का एक ही मूल संदेश है, वैष्णव सेवा। जब भारत उपदेश दे रहे हैं, एक ही विषय पर बार बार कह रहे हैं। पूरा अध्याय, अगला अध्याय में आप पढ़ोगे, साधु सेवा, साधु की सेवा करना, उस पर सेवा करना मतलब कि उनकी शिक्षा का पालन करना। यानी आप सेवा करो और मनमानी कार्य करो। जब आप सेवा पढ़ते हो, उसका रियल अर्थ है फॉलो देयर टीचिंग्स, राइट? Gumash, I'm sorry I could not explain myself clearly. My understanding is that I have always heard from Your Holiness and others also that Vani Seva is very, very important. But then Vapu Seva is also stressed in your own lectures and in other lectures. My question is that often when we try to serve senior Vaishnavas, they do not provide us the opportunity or they don't allow us. So how does one get the purification that way? Otherwise we are missing out on that opportunity. They may prevent you from personal service, but they won't prevent you from following the instructions. Just like Prabhupada's service is to his Vani now. So Vapu आवश्यक है, वाणी ज़्यादा आवश्यक है। और प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में कहा है, कई बार हम वापु सेवा करेंगे, हार ला देंगे, गुरु के सामने नाचेंगे और शिक्षा का पालन नहीं हो रहा, उसका कुछ लाभ नहीं। Actually, the whole purport is just on this theme. Thank you very much. अगर आप इस अध्याय को पढ़ो, हर श्लोक में लगभग एक ही विषय आ रहा है। Thank you, Maharaja. Like you spoke very wonderfully, and in one point you stressed that developing attachment to the devotees will help you to do chanting, hearing, all the bhakti process very easily. Lord Kapila Dev has very nicely stated, attachment to the materialist is the cause of bondage. And the same attachment, when transferred to a self-realized soul, sadhu, will open the doors for liberation. Attachment has to be there. We people in the material world are not attached to human beings, get attached to cats and dogs. Why do people keep cats? Because they're looking for somebody they can get attached to. Why do they get attached to dogs? They need someone they can boss over. He'll throw a ball and he'll take the ball and come running. But you will tell your children, go and get me that ball. Children say, I'm not your servant.
Why have people switched over to cats and dogs? They first saw human beings are not so reliable. I trained up my child, made him study, gave him the best education. Now he doesn't listen to me. But a dog, you look up to him, he'll be fully loyal to you. Whatever you say, he says yes. Now that's why people turn to dogs and cats, because they are more obedient. They don't go rebel. So Kapila Dev says, the same attachment that you have towards something negative, materialistic, transfer that attachment to a saintly person. And then that will open the door of liberation. This point gets emphasized again and again. Yes. Yes. Hare Krishna Maharaj, thank you Maharaj for your wonderful lecture. Maharaj, this attachment to devotees, what is the benchmark and the sense that what is the limit of attachment? Attachments to devotees mean what, Maharaj? What does it mean by attachment to devotees? Attachment to the devotee should not be sentimental. Sometimes we are attached to the guru or a sadhu sentimentally, but I don't do what I'm told, and that attachment is useless. Attachment means I follow what is good for me spiritually and explained by the guru. Then that is positive. I can be attached, but I still do my own thing. That attachment has no value. So really, the other thing is attachment to the instructions. Vani. Maharaj, attachment should not be sentimental. What does it mean by sentimental, Maharaj? Sometimes people are just attached sentimentally. I like this person, but they don't do what he says, and it has no value. It's more important that we do what we are told, and even if it is painful, when you have to follow instructions, it is painful. Just like when a child is young, he sucks a thumb. But as he gets older, the mother says, "Come on, stop sucking the thumb." So initially the child will cry, but then say, "Oh, this is for my benefit." Yeah. Yes. For a person, Maharaj, who is not so intelligent, so qualified, and a person who is not so talented, it may be easy for him to follow because he is very simple. Materially, he is not so well situated, but he is able to follow because he is not able to apply his material intelligence. He just follows what he's been told. But somebody who is very intelligent materially and very qualified, very talented, it's seen that the person applies his own material intelligence also to follow the instructions of the spiritual master or the Vaishnavas. So, how to remain safe in that situation, Maharaj? Sometimes people who are materially educated, they think they're too smart. So they're often trying to challenge. Of course, there are many smart people, educated people, who have a critical mind, but they're ready to be defeated. They want to be convinced. And there are some intellectuals who, doesn't matter what you say, they will not surrender. And those who are simple and they surrender, they are more fortunate. हम कहते हैं वो तो सादा आदमी है, उसकी बुद्धि तेज नहीं है, जो तुम बोलते हो वो कर देता है.
मेरी तो बुद्धि तेज है, मैं अपने मन से करूँगा। तो एक रूप से ये भारी बोझा है। ठाकुर भक्तिनाथ क्या कहते हैं मटेरियल एजुकेशन का? हैवी क्राउन ऑन योर हेड। भक्तिनाथ ठाकुर कहते हैं दिस मटेरियल एजुकेशन इज ए भारी क्राउन आपके सिर पर। सो मटेरियल एजुकेशन इज प्लस एंड माइनस बोथ। Education is actually important in such a way that the person becomes very analytical and very reasoning, and he applies logics and everything. So same thing comes in spiritual life, but sometimes it becomes very detrimental. Sometimes devotees think they are over smart. कई बार devotee सोचते हैं हम बहुत स्मार्ट हैं। No, we can have educated questions, but ultimately our mood should be to surrender. Whether you are PhD or uneducated, the goal is to surrender. And if you don't surrender, then stay in the material world to go through some more samsara. As it is now, people are realizing material world is painful. इस श्लोक में आप क्या देख रहे हो? महाराज ने कहा कि मैं जब पूर्व जन्म में था, मैंने अपने अनुभव किया ये भौतिक संसार में सुख नहीं है, और इसलिए मैंने मेरे राज्य को त्यागा। और मुझे यही ज्ञान इनडायरेक्टली वेदों से भी प्राप्त हो रहा था। So anyone who is intelligent can see, स्पेशली आज के वातावरण में एक रूप से प्रचार ज़्यादा सरल बन गया है। आज के समाज में हर व्यापारी रो रहा है, हर व्यक्ति एक रूप से दुखी है, क्योंकि वो देख रहे हैं कितना कष्ट है समाज में। एक वायरस जाती है, अगला वायरस आती है। अभी लोग इंतज़ार कर रहे हैं बड़े उत्साह से, कब इसका वैक्सीनेशन आएगा, कब ये आएगा। ये वायरस समाप्त होगी, अगले बार नया वायरस आ जाएगा। Now there are no jobs for university graduates also. और कोई प्रश्न? हरे कृष्ण महाराज जी, दंडवत प्रणाम। महाराज जी, इस बार हुंडी सेवा जैसे हम हर बार क्या? हरे कृष्ण महाराज जी, दंडवत प्रणाम। पूछिए। महाराज जी, जैसे हुंडी सेवा हर बार हम करते थे, मार्केट में दुकान जाते थे, तो इस बार ऑफिस में भी ऑफिस के मैनेजर बोला कि तुम दूसरी डिपार्टमेंट में मत जाओ अब। मैंने कहा क्यों? बोले तुम हर जगह जाते रहते हो, अपने सीट पे बैठो। तो महाराज जी, हुंडी सेवा को कैसे अच्छे से करें, कुछ बताएं इसके बारे में। ये जो हुंडी सेवा है, दुकान जाना, ये हमें करना चाहिए। कौन ऑब्जेक्ट कर रहा है? वो लोगों को डर लग रहा है, क्या किया जाए। किसने सोचा था ये इतना भारी करुणा आएगा? सोचा था, मैंने तो नहीं सोचा था सब बंद हो जाएगा। More questions? Yes. हरे कृष्णा गुरु महाराज। महाराज, मेरा प्रश्न है कि इस श्लोक में बताया जा रहा है कि भक्तों की चरण धूलि को हम स्पर्श करें तो हमारा आध्यात्मिक जीवन में उद्धार होगा, लेकिन अक्सर ऐसा देखा जाता है कि किसी भी भक्त से अगर उसकी चरण की धूल हम मांगते हैं तो वो सरलता से तो देंगे नहीं, महाप्रसाद तो देते नहीं है, तो चरण धूल तो वैसे ही नहीं देंगे। तो धूल का असली अर्थ है शिक्षा का पालन। ये नहीं उनके चरणों की धूल ले लो और वो धूल को प्लास्टिक बॉक्स में रखो। नहीं, इसका असली अर्थ है धूल ले लो, असली चीज़ है वाणी। Am I right? Real thing is वाणी।
तो वो तो कोई महात्मा रोकेगा नहीं। तो ये बात सच है, कोई चाहता नहीं उनके चरणों की धूल लो, पर वाणी का पालन तो कर सकते हो। Is that right? Yes, Mahārāja. Yes. हरे कृष्ण महाराज। महाराज हरिसुंदर प्रभु पूछ रहे हैं, घर पे हैं वो अपने, कि आपने बताया कि जो भक्ति के प्रतिकूल चीज़ें हैं उन्हें त्याग देना चाहिए, तो कभी कभी बीवी और बच्चे भी प्रतिकूल होते हैं, तो क्या उनको भी त्याग देना चाहिए? बीवी और बच्चों की देखभाल करो, फिर साथ में उनको भक्ति में भी जोड़ो। तो ये जो गृहस्थ हैं, एक दिन त्यागते हैं, अगले दिन आज कहेंगे मैं तो दुखी हूँ इस आश्रम में, कल कहेंगे हम सुखी हैं। This is not to be taken seriously. सातवें स्कंद में भगवान के युधिष्ठिर महाराज कहते हैं सबको सेवा में लगाओ। Okay, any other question? हरे कृष्ण जी। हमारा हरे कृष्ण जी। क्या? अच्छा, अब इस क्लास समाप्त करनी पड़ेगी क्योंकि अंदर खोलने का समय आ रहा है और तैयारी करनी है उनको। 10 बजे लोग हैं यहाँ। पूछिए। महाराज मेरी प्रार्थना ये है कि मैं भौतिक संसार से मुक्त हो गया हूँ, मैं चाहता हूँ फुल टाइम मंदिर में आ जाऊँ। अगर आपकी आज्ञा है तो मेरा बात करते हैं बाद में। हाँ, आपको फुल टाइम सेवा दे सकते हैं। Any more questions? Yes, quickly. You have to stop the class because you have to fix up the... हरे कृष्ण गुरु महाराज। महाराज प्रभुपाद परपट में लिख रहे थे कि अगर कोई अपने गुरु के स्थान पे फोर्सफुली आना चाहता है तो उसका वहीं से पतन शुरू हो जाता है। तो महाराज अगर थोड़ा इसको एक्सप्लेन करें। If one always follows the orders of the spiritual master, there is no question of falling down. As soon as the foolish disciple tries to overtake his spiritual master and become ambitious to overtake his spiritual master, मतलब कि जैसे मैंने उदाहरण दिया था, galloping horse cannot eat grass off the ground. तो अगर कोई सोचे मुझे गुरु की शिक्षा की आवश्यकता थी, मैं सब जानता हूँ, मुझे पता है वो क्या बोलेंगे, तो फिर भक्ति में आगे बढ़ना will be more difficult. We better stop here. तो आप लोग प्रचार से डरो मत और ये मत सोचो कि हर जगह में हर कदम में खतरा है। प्रचार करना तो पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा रिस्क तो लेना पड़ेगा, बट वी शुड टेक ऑल प्रिकॉशन। जो सरकार के नियम हैं उन सब का पालन करना चाहिए और साथ में उत्साहित होना चाहिए। ओके, हरे कृष्णा। My neck was straight now.